We good to go? Perfect. So, guys, welcome to this lecture. Technically, it's day 9 of our fellowship, the Global Youth Content Fellowship. And today, it's a very special session because we are touching a very unique topic of content creation itself. सबसे ज़रूरी मुझे लगता है content creation के topic को हम आज touch करने जा रहे हैं, which is the philosophy of content creation. Why do we find the need to create content, right? So before beginning, I would just request, if you have some notebook and pen, please keep them handy because today we'll be taking certain notes. Okay. So before beginning, I want to ask you guys, why do you think content exists? Like, what's the purpose of creating content? Okay. Anyone? Let's start with Hassan. Yes, Hassan. Sir, there are several purposes in serving content. For example, it can be imparting knowledge, it can be for entertainment, it can be for sharing experiences as well. All right. So we have knowledge, sharing experiences, and infotainment, which Yes. is essentially information and entertainment combined. All right. ठीक है. इसके अलावा और कुछ? Why do you think content exists? An easier question would be why do you watch content? Content creators exist because there is a demand. People want to watch content, but why is a demand like that? Anyone else? Yes, Tamanna. All right, Garf. Am I audible? Sure, sure. Sir, as per me, the fact is that sir, am I audible? Yeah, perfectly audible. Sir, am I audible? Okay. Audible. Sir, my thing was कि the content exists because we all humans have a kind of, we love to get inspiration. For suppose if I want to get inspiration for debating, so I will watch your videos, your content. If I want to have, if I have to buy some clothes, so I will go to have some lifestyle content creators. So it is the way earlier we have TV, then before we have plays. So it is the history of human beings that we love to have inspiration from something. If to basically if we're going to pursue something, we first have to take some inspiration kind of thing, or we can see the comedy even. So from there, this thing of content exists, and with different kind of fields, the form of the content and the type of the content changes. All right, that's also a very good and elaborate answer. अच्छा, इनके अलावा और कोई डिफरेंट थिंग डू वी हैव? आदित्य विनायक, हु इज दिस? आदित्य विनायक के अकाउंट से कौन आया? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? आई गेस कोई चलो, we'll come to this again. But Khair, why does content exist, right? We have different opinions and answers to this. All of them are correct. To some degree, every um, demand, induces that supply of content creation. Now, to the more important and pertinent topic, why do you want to create content, right? So we can say that content is simply a communication, but at a scale, right? You talk to one person, you talk to 5 people, you talk to 10 people. That's limited. But when you start creating content, it immortalizes your sayings or whatever you have to say. You put it on a storage on a cloud, and it will survive. Many people can watch it. Up to itna zyada software features aa gaye hain. This Google Meet itself, if someone who does not understand Hindi or English, even they can join in and put in captions for their particular language. Now in the age of AI, we have ट्रांसलेटर्स विच वर्क एट लाइव स्पीड. आप यूट्यूब में देखते होगे जो चैनल पहले सिर्फ इंग्लिश में वीडियोस डालते थे, आप उनमें अब चेंज करके ऑडियो को हिंदी कर सकते हो, तो रियल टाइम में वो ऐसा लगेगा, और उनकी लिप सिंक भी ऐसे हो जाती है कि पता ही नहीं लगेगा वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, राइट? So it is communication at scale, and every piece of content, that you produce, it should be meaningful to you as a content creator. It should add some value to yourself, and that's when your content will work. People often ask why does certain kind of content work,
or why does certain type of content does not work. So I think the most important thing is being true and meaningful to yourself, whatever kind of content you are creating, right? So in today's session, we would aim to discover what value do you want to create, right? To help you find your niche in content creation. Okay. So moving on to the philosophy of content creation, that now that we know why people consume content, right? Let's see the kind of consumption, let me first ask you, what platforms do you use to consume content? आप में से कितने लोग हैं, हैंड रेस करके बताना, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं? बहुत, मतलब रोज चलाते हैं एक बार तो, ठीक है? वन हैंड रेस, टू हैंड रेस, ठीक है। बाकी लोग इतना इंस्टा नहीं चलाते। बाकी यूट्यूब कितने लोग चलाते हैं? ठीक है, यूट्यूब चलाते हैं ज़्यादा लोग। लिंक्डइन कितने लोग चलाते हैं? ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ दिन पहले कि अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाना, राइट? तो आज का टास्क तो ये ज़रूर रखना, ठीक है, कि लिंक्डइन अकाउंट सब बनाएंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद डूइंग द पीपीटी टास्क। तो इसी में इनहेरिट मान लेना, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लिंक्डइन अकाउंट दीज डेज, एंड द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर एंड ईजियर इट वुड बी टू build a profile out of that in the coming years, ठीक है? तो वो भी करा करो। तो आप देख पा रहे हो, आपके विविड आंसर से हमें समझ आ रहा है कि डेमोग्राफिक भी बड़ा जो है शिफ्टेड है। आजकल इतने फॉर्म ऑफ कंटेंट आ गए हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं एवर सिंस द अराइवल ऑफ टिकटॉक, राइट? टिकटॉक तो बैन हो गया, पर वो इंस्टाग्राम रील्स में आ गया और वो यूट्यूब शॉर्ट्स में आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उसमें क्या है कि ऑडियंस की अटेंशन जो है वो एक पैरामीटर है जिसके लिए सब कंटेंट क्रिएटर्स जो है कॉन्शियस रहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ न्यू content creator and a seasoned content creator is simply that they know what not to do, right? So that is a journey that you will embark upon, and that is something you'll have to think as to what things to avoid. And the ultimate goal again is grabbing the audience attention, okay? And attention, we must remember, it's something which is earned and not demanded, एल्गोरिदम्स ऑल्सो, जो भी पीछे एल्गोरिदम्स होती हैं, किसकी वीडियो प्रमोट होगी, किसकी वीडियो जो है ऊपर फीड में आएगी लोगों के, दैट इज ऑल्सो रिटेंशन जो है, जो ऑडियंस है, जब वो केवल क्लिक कर रही है वीडियो पे, दैट्स नॉट इनफ। जब वो वीडियो देख रही है पूरी, आपके हुक के पार जाकर भी वीडियो को पूरा देखा जा रहा है, राइट? हुक समझते हो? हुक मैं बता चुका हूँ लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, राइट? तो जब आप हुक के पार वीडियो को देख रही है ऑडियंस, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन, ठीक है? तो कितने रिटेंशन आप रख पा रहे हो ऑडियंस का, वो देखते हुए एल्गोरिदम आपकी वीडियो को और ज़्यादा पुश करेगी, ठीक है? अब रिटेंशन रखने के लिए अगेन ऑडियंस रिवॉर्ड वैल्यू, अगर आप उनकी लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हो, अगर वही इफ इट्स एन एंटरटेनिंग वीडियो, इट शुड add some entertainment value to the audience. If it's an infotainment video, it should add some value that way to me, right, as an audience. So algorithms will reward retention, and retention kaise aayegi? When audience will reward the value of the video. So essentially, as a content creator, you need to keep the aim clear. The aim is to have audience retention, okay? Maximum number of audience land at your video, and to reach that objective you have to have good value in your videos, ठीक है? मेकिंग अ वीडियो, जैसे हमने एक कुछ दिन पहले होमवर्क में भी एक्सप्लेन कि किस तरह आप 3 इडियट्स की बात कर सकते हो, कि उसमें फन फैक्ट्स अबाउट 3 इडियट्स, कुछ ऐसा हमने आपको दिखाया था। सो दैट हैज सम एंटरटेनमेंट वैल्यू, ठीक है? सम नीश एंटरटेनमेंट ऑडियंस वुड लाइक इट एंड वैल्यू इट, ठीक है? अगेन हमारे पास एक सबमिशन आई थी कि द हिस्ट्री ऑफ रेडियो इन इंडिया, that's such an interesting video. That is something which would add value to the user. So again, this is something that you have to think, and you have to put these criteria while deciding your kind of niche, okay? Finally, one thing you must understand is that views are temporary, but the credibility is permanent, ठीक है? as simple as that. Views जो हैं, एक वीडियो फट गई, एक वीडियो चल गई, वो बड़ी टेम्परेरी रहती है। बहुत लोग होते हैं जो
कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो केवल 1-2 रील्स उनकी बहुत अच्छी चलती हैं, बाकी उतना ज़्यादा बढ़िया वर्कआउट नहीं कर रहा होता। वहाँ पर ये काम आता है कि आप क्रेडिबिलिटी अपनी बिल्ड करो। यू नो, इफ यू have your niche, if you have selected your niche and there are say 10 content creators for that niche, suppose you review tech या you review phones, आप phone के review बनाते हो, ठीक, gadgets के, so if you are in that space, what is your credibility, what kind of value do you add? You know, you must focus on that and you must carry that trademark, that thing throughout whatever you do, right? तो जो भी आपका कंटेंट जा रहा है उसका एक सर्टेन स्टैंडर्ड हो कि यार इस कंटेंट क्रिएटर की ये वीडियो, तो आई कैन एक्सपेक्ट दिस सर्टेन स्टैंडर्ड। जैसे कुछ न्यूज़ चैनल्स है, ठीक है, उनके जब जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स है जो यूट्यूब पे है, सिर्फ कुछ ऐसे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पे वी नो कि इनकी वीडियो है तो इट वुड बी एटलीस्ट फैक्ट चेक, इट विल नॉट बी मिसलीडिंग, इट विल नॉट बी पेंटेड इन जस्ट वन one side of the political spectrum. They will give a holistic view of the situation. That's why we value them and watch their videos, right? तो कुछ इसी तरह से आपको अपने नीश में खुद की ऐसी क्रेडिबिलिटी अर्न करनी है, ठीक है। तो नाउ दैट वी हैव डिस्कस दीज क्राइटेरिया, ठीक है, एक फॉर्मूला है जो इसी चीज को एनकैप्सुलेट करता है, दैट इज द काइंड ऑफ वैल्यू दैट यू क्रिएट इन योर कंटेंट, ठीक है, दैट इज द इनिशियल फर्स्ट इनपुट दैट यू गिव, ठीक है, दैट विल इन टर्न रिजल्ट इन, ठीक है, सेकंड थिंग जो उससे निकल के आएगी, दैट इज द ट्रस्ट दैट द ऑडियंस विल पुट to you and your brand or your channel or whatever page you have, ठीक है, and that will in turn result in opportunities, ठीक है। अब इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो यू कैन इमेजिन कि 5 से 6 महीना अगर आप किसी भी नीश को पकड़ के कंटेंट डालते हो और ऑनेस्टली और वैल्यू के साथ डालते हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी एक ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी अराउंड 5 to 10K की, ठीक है, एंड दीज आर कंजर्वेटिव फिगर्स, ठीक है, अनलेस आपकी कोई रील फट गई, आपका लक भी आपके साथ था, कुछ मार्केट में भी डिमांड वैसी उठ गई, ठीक है, तो फिर तो वो और ज्यादा एसिमेट्रिक रिटर्न्स देगा, ठीक है। एसिमेट्रिक रिटर्न समझ, तो छोटा सा कंसेप्ट हम समझते हैं रिटर्न्स का। वन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिटर्न। सिमेट्री तो हमने मैथ्स में पढ़ा ही है कि लेफ्ट और राइट एक जैसे दिखते हैं, तो जब इनपुट और आउटपुट सेम सा आता है उसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिजल्ट्स, ठीक है। आपके पास 50 रुपए का नोट है, ठीक है, आपने 50 रुपए का नोट दिया, आपको किंडर जॉय मिल गया, तो 50 रुपए की वैल्यू में जैसी चीजें आती हैं आपको उस तरह की कोई आइटम मिली, इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक रिटर्न। अब इसको हम एफर्ट के तरह समझते हैं, ठीक है, आपने 10 साल अपने लाइफ के किसी एक स्पोर्ट को मास्टर करने के लिए लगाई, ठीक है, मैंने 10 साल बैडमिंटन खेला सपोज, तो फिर मैं बैडमिंटन में एक सर्टेन लेवल तक अच्छा हो गया, ठीक है, मैं स्टेट में टॉप 100 प्लेयर्स में आ रहा हूँ या अपने देश के टॉप 100 प्लेयर्स में आ रहा हूँ, तो एक रिटर्न मुझे मिल रहा है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिटर्न, ठीक है। एसिमेट्रिक रिटर्न का मतलब होता है जब आप इनपुट तो कुछ डाल रहे हो लेकिन आपको आउटपुट बहुत ही क्रेजी कुछ ज्यादा मिल जा रहा है, ठीक है, जैसे गैम्बलिंग में होता है, ठीक है, इट्स नॉट द आइडियल एग्जांपल बट एक समझने के लिए कि आपने गैम्बल किया 1000 रुपीज के साथ और आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया, सो दैट इज एन एसिमेट्रिक रिटर्न। तो कंटेंट इज वन सच थिंग व्हिच गिव्स यू एसिमेट्रिक रिटर्न। आप 10 वीडियोस बनाओ, ठीक है, और अगर सब चीजें यूनिवर्स की ठीक बैठती हैं तो हो सकता है आपका कंटेंट इतना ही चल जाए, फट जाए कि फिर आप सीजन कंटेंट क्रिएटर्स की लीग में आ गए, ठीक है, जो आपको उतने रिटर्न्स देगा। तो अगेन फोकसिंग ऑन दैट कि क्योंकि ये एसिमेट्रिक रिटर्न्स होते हैं, तो आप एक फॉर्मूला जो लगा सकते हो वो ये कि सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करो अपने लिए, ठीक है, ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करो एंड डू दैट साइकिल कंसिस्टेंटली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये उनके लिए जो आप में से भी कुछ लोग होंगे जो कंटेंट की तरफ अग्रसर हैं, तो जो करना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज कंटेंट इज अ करेंसी इन टुमारोज डे एंड एज। भले ही आप कंटेंट क्रिएटर प्रोफेशनल ना बने, ठीक है, यू माइट नॉट एंड अप क्रिएटिंग यूट्यूब और इंस्टाग्राम वीडियोज, बट स्टिल वट एवर फील्ड यू आर इन, जैसे आज हम पीपीटी मेकिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इवन इफ यू बिकम अ डॉक्टर, अ लॉयर, गो इनटू फाइनेंस, तो आपको अपने कॉर्पोरेट लाइफ में या जो भी लाइफ आप चूज करो पीपीटीज तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक स्किल है जो आपको किस तरह से खुद को आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट करना है, वही कंटेंट का कोर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन, डोंट जस्ट चेज वायरलिटी, चेज यूजफुलनेस, ठीक है। केवल वायरल होना गोल नहीं होना चाहिए, यूजफुलनेस को मेन गोल बनाओ, वायरल अपने आप जो है इवेंचुअली हो जाते हैं। चलो नाउ दैट वी हैव डिस्कस दीज फ्यू हेडिंग्स, नेक्स्ट चीज जो है वो है चूजिंग द राइट नीश, ठीक है।
एक सवाल है जो आपको खुद से पूछना है, ठीक है, इस सवाल को ध्यान से सुनो. इफ समवन फॉलोड यू टुडे, you know, why should they stay? Suppose if someone lands on your page, on your video by chance, what is the call to action that you give them? Why should they follow you and stay for more content? Why? That is a question you must ask. Okay, many content creators in their early days, they take up 5 things at once. यार मैं एजुकेशन, लाइफस्टाइल, व्लॉगिंग, ट्रैवल, सब कंटेंट बनाऊंगा. लेकिन उससे होता है कि आप फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हो व्हाट एक्चुअल वैल्यू यू आर एडिंग टू योर ऑडियंस, राइट? सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि कोई आपको फॉलो क्यों करेगा, राइट? आप क्यों चाहते हो कोई आपको फॉलो करे? उनको क्या वैल्यू मिलेगी आपको आपके पेज को फॉलो करने से, आपके कंटेंट को फॉलो करने से? तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? एक अच्छी नीश की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. अगेन ये इनको चाहो तो आप लिख सकते हो क्योंकि ये आपके होमवर्क में आपको हेल्प करेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक अच्छे नीश की क्या होती है? एक तो पहली बात वो नीश हो, NICH, नीश का मतलब है वो एक सर्टेन सबसेट हो. बहुत कोई वास्ट चीज नहीं पकड़नी, ठीक है? कोशिश करना उसका कुछ सबसेट पकड़ो, और जितना स्पेसिफिक सबसेट पकड़ोगे उतना बेटर और रिफाइंड कंटेंट आप बना पाओगे, राइट? जैसे कि आप स्पोर्ट्स के बारे में अगर करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स इज वेरी वेरी वाइड नीश. उसमें उतना शायद आप एक्सेल ना कर पाओ. लेकिन आई हैव अ फ्रेंड जो इस पे कुछ सालों से अब तो काम कर रहा है, जो WWE और जितनी रेसलिंग स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करता है सिर्फ और कंटेंट बनाता है. दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ टू चूज योर नीश. इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वेरी बिग सेट, चूज अ सबसेट. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड नीश इंक्लूड, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट, राइट? आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में. यू नो यू कैन ओनली शो इंटरेस्ट to your audience and create their interest if you know yourself reciprocate it. You know, if you are not very interested in something, suppose आज मैं कहूँ कि यार मैं जो है फिजिक्स पढ़ाता हूँ या फिजिक्स की वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं शायद खुद उतना मोटिवेटेड ना हूँ वो करने के लिए. तो दैट इंटरेस्ट, क्योंकि कंटेंट ऐसी चीज है, जब कंसिस्टेंसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आफ्टर डे 5 you know your submissions will become late. After day 10, 15 and whatever you are doing, if you are creating content, you'll get bored of it. You might don't feel like picking up the camera if you don't see immediate returns. But that is where your interest will push you. यार मजा आएगा करते हैं, ठीक है? तो इंटरेस्ट होनी चाहिए. नॉलेज, ठीक है? नॉलेज कैसी होनी चाहिए? जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ही उसमें नॉलेज वाली साइड हो. जैसे जरूरी नहीं कि सब PhD किए हुए लोग ही फिजिक्स की वीडियोस बनाते हैं, राइट? But you should have a little more knowledge than what a layman would, right, about the topic. ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा पहले खुद पढ़ें उस चीज़ के बारे में. कोई भी गलत इन्फो नहीं देनी हमें इवेंचुअली, राइट? तो इंटरेस्ट हो, नॉलेज हो थोड़ा उसके बारे में, ठीक है? फिर तीसरी चीज़ जो सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी, ठीक है? हमने वीडियो की स्टार्टिंग में हमारी कंसिस्टेंसी को एनालाइज करा था. कोशिश करना है उसको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है? 100 or the realistic figure would be a crore people would sit and think कि यार content बनाते हैं. Out of them, suppose 10 lakh people actually make a YouTube channel, start recording some videos. They've recorded some videos, edited those videos and started publishing. However, the goal that you might have initially कि यार मैं suppose आज से 1 महीने भर में I will put out 10 videos, ठीक है? आज से 6 महीने के बाद I would have put out say 50 videos, and then I aim to have 500 subscribers by then, and by the end of 1 year when I put out my 100th video, I will have a 1,000+ subscriber base. Okay? These are some goals that you, but it is only possible when you are consistent with your goals. ठीक है? 5 वीडियोस बनाने के बाद आप सोचोगे यार मेरे तो सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, should I stop making content? That is where the question of consistency comes in. Right? So if you are in for the big leagues, you need to be a little more consistent. Again, not just limited to videos on YouTube. Throughout the walks of your life. ठीक है? आप में से कुछ लोग होंगे जो भी स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, राइट? तो अगेन कंसिस्टेंसी इज समथिंग यू विल रिक्वायर इन एवरीथिंग. Whatever goals you have in life, try to be more consistent for it. Okay? So interest, knowledge, consistency, then long-term sustainability. This is something which might characterize your good niche. Suppose you discuss the FIFA World Cup 2026.
तो आप इसकी कितनी बात कर लोगे, कब तक की बात कर लोगे, राइट? अभी वो चल रहा है, अभी कुछ देर में वो खत्म हो जाएगा, तो उसका कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है। थोड़ा आपको नीश सिलेक्ट करते हुए ये देखना है कि आप ऐसा नीश भी सिलेक्ट ना कर लो जिसकी लॉन्ग टर्म रेलेवेंस या सस्टेनेबिलिटी शायद उतनी ना रहे, ठीक है? ट्राई करो ऐसा ऐसा कंटेंट नीश पकड़ो जिसकी ऑडियंस आज तो है और आज के आने के वाले टाइम में भी बढ़े या फिर एटलीस्ट उतनी तो रहे, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान देना। और फाइनली फिफ्थ चीज़ जो है वो है ऑडियंस की डिमांड, ठीक है? थोड़ा मार्केट को स्टडी करना है हमें, समझना है कि ऑडियंस को क्या पसंद आ सकता है, राइट? तो वो चीज़ हम कैसे देखते हैं, थोड़ा खुद से रिसर्च करके, ठीक है? आज हमारे पास रिसर्च के इतने टूल्स आ गए हैं, डीप रिसर्च के, ठीक है? आप में से कितने लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं या कोई जनरेटिव एआई यूज करते हैं? बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है? 1 2, कुंवर, गर्व, आदित्य। चैट जीपीटी में एक फीचर आता है डीप रिसर्च का, आप में से कितने लोगों ने कभी उसे यूज करा है, डीप रिसर्च? तो हसन ने यूज करा है, ठीक है? बता सकते हो क्या यूज करा था उसका? Yes, sir. So, like when I had my first MUN, so I wanted to gather information on the country of Jordan. So, because again, there were so many sources out there. There may be some sources which are not quite legible or trusted. So that's why I used ChatGPT's deep research feature. I mentioned some of the authentic sources, and from those sources, it gave me exact statements and what source it has given from it. Although it took a long time, but I got refined results to a very great extent. ऑलराइट, यस गर्व। सर थोड़ा सेम ही है, टॉपिक पे रिसर्च करनी तो उसके लिए थोड़ा सा रेफरेंस के लिए उसे सर्च करते एंड फिर रेट्रोस्पेक्टिवली आर्टिकल में रेफर। तो थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है गर्व तुम्हारी, एक काम करो चैट उसमें लिख के भेज दो, चैट सेक्शन में, ठीक है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने हमारा जो यूट्यूब सेशन हमने अपलोड करा है विद प्रशांत सर वो देखा था? आप में से कितने लोग लाइव आए थे उसमें? लाइव तो आई गेस जो लोग इस मीटिंग में वो नहीं आए थे। अच्छा, तमन्ना वॉज देयर, ठीक है? बाकी कितने लोग देख चुके हैं उसको एटलीस्ट यूट्यूब पर? ठीक है। अच्छा आदित्य, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, कैन यू टेल अस हु आर यू? या चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है? मीनवाइल यार उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस हुई थी। एक टाइप ऑफ एआई होता है, ठीक है? पहला तो है प्रॉम्प्ट बेस्ड एआई, जिसको हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, जितना हम 99% अपना यूज केस रखते हैं। फिर एक टाइप ऑफ एआई होता है जिसको हम बोलते हैं एजेंटिक एआई, ठीक है? एजेंटिक एआई, तमन्ना डू यू रिमेंबर इट? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन टू अदर्स व्हाट एजेंटिक एआई इज? Sir, I really didn't understand it. चलो मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैरी एक बार टाइप कर दोगे चैट बॉक्स में एजेंटिक एआई? एजेंटिक एआई, ये टर्म एजेंट से डिराइव होती है, जब आप एआई को अपना एजेंट बना लेते हो, ठीक है? एजेंसी दे देते हो, मतलब उसे कोई काम दे देते हो जो वो खुद से फिर उसके स्टेप्स डिसाइड करके करता है, ठीक है? आप उसे कह देते हो भाई एक रिसर्च पेपर लिख ऑन सो एंड सो टॉपिक, and it will step by step research it, verify it, see the sources, fetch the sources and give that research paper। उसमें वो टाइम ज्यादा लेता है, आपको प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ता है, फिर अपने आप ऑटोनोमसली वो सब कर देता है, ठीक? क्लॉड इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। क्लॉड पे यू कैन बिल्ड एआई एजेंट्स जो शायद आपके ईमेल्स कर दे आपके बिहाफ पे, राइट? आपके बिहाफ पे व्हाट्सएप मैसेजेस कर दे आपके बिहाफ पे, आप उसे कंट्रोल दे देते हो कि यार ये मेरे इंस्टाग्राम का पास वो है आईडी वगैरह, इस पे मुझे ये कंटेंट इन डेट्स पे अपलोड कर, और उसे रन कर दो, तो वो अपने आप एजेंट बन जाता है आपका, अपने आप वो प्रोसेसेस ऑटोनोमसली होते रहते। आज के डे में जो एआई प्रॉम्प्ट बेस्ड आप यूज कर रहे हो, दैट इज समथिंग एवरीवन इज डूइंग। हाउ डू यू टेक योर एआई गेम वन स्टेप फॉरवर्ड? यू स्टार्ट यूजिंग एजेंटिक एआईज, इसका यूज केस आज ही हम आपको दिखाएंगे कैसे यूज करना है, ठीक? आज हम बहुत बेसिक एग्जांपल लेंगे, चैट जीपीटी का डीप रिसर्च फीचर आज केवल वो करेंगे, ठीक है? उसमें हम लेट अस स्टार्ट बाय पुटिंग इन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्राई टू सी कि मार्केट रिसर्च में हमें वो हेल्प कर पाता है या नहीं, ठीक है?
चलो मीनवाइल ये होता है, एक आज के लिए मॉडल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइस, कोई नीश अगर आप सजेस्ट करना चाहो, ठीक है। तमन्ना, डू यू हैव समथिंग इन माइंड? Can we go something into like creative writing, like poetry types? पोएट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। चलो अब जैसे इसी को लेते हैं, ठीक है। पोएट्री में हमारा इंटरेस्ट है, तो सबसे पहला हमने 5 चीजों में क्या लिखा था? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमें पोएट्री में, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट को पकड़ते हैं। लेट अस पुट अ प्रॉम्प्ट टू रिफाइन आवर नीश, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को रिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉम्प्टिंग जो हमने कुछ दिन पहले सीखी, तो उसमें हमने 4 चीजें बताई थी एक अच्छे प्रॉम्प्ट में जो जाती हैं। कोई रिपीट करेगा वो 4 चीजें? अच्छा, कुंवर को याद होगा, कुंवर वाज देयर इन दैट लेक्चर। यस, कुंवर बताओगे? व्हाट आर द 4 थिंग्स इन अ गुड प्रॉम्प्ट? चलो, आज फ्रॉम तमन्ना देन। तमन्ना? First was personality, like generating a personality. Then was task, like giving a script for what we want to. Then was context. Fourth was parameters, basically format. परफेक्ट, परफेक्ट। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया तमन्ना, यू रिमेम्बर इट ऑल, ठीक है। दिस इज समथिंग जो आप एवरीडे लाइफ में भी यूज कर सकते हो, है ना। चलो हम प्रॉम्प्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी देते हैं। लेट्स टेल चैट जीपीटी, हमें करवाना है कि नीश डिसाइड करना है। सो लेट अस टेल चैट जीपीटी दैट चैट जीपीटी, you are the world's best guide on content creation, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट गाइड ऑन कंटेंट क्रिएशन, who has 20 plus years of experience in creating high value content for audiences on YouTube, Instagram, etc. प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा पर्सनालिटी दे दिया, एक लेमैन की तरह आंसर करने के बजाय या नॉर्मल रिस्पॉन्स देने के बजाय वो इस पर्सपेक्टिव से आंसर देगा, ठीक है। तो पहला पार्ट पर्सनालिटी असाइन करने का हुआ खत्म। अब सेकंड इसको देते हैं पार्ट, जो है हमारा टास्क। में टास्क कहते हैं ना, हमें चाहिए कि हमें नीश आइडेंटिफाई करना है अभी, तो ना हेल्प अस आइडेंटिफाई आवर नीश फॉर कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। अब ये हमारा टास्क हो गया इसको, ठीक है। बहुत बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ, आप जब प्रॉम्प्ट डालने लगो तो थोड़ा और इसको रिफाइन करके जैसे जैसे आपको नीड्स के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से करना। हेल्प अस आइडेंटिफाई आवर नीश फॉर कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? इसको देना है हमें कॉन्टेक्स्ट, कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों चाहिए, हमारी ऑडियंस कैसी होगी। तो इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि वी विश टू गेट मोनेटाइज बाय इन 3 मंथ्स, ठीक है। इन 3 मंथ्स, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स कर दो। तो हमने कॉन्टेक्स्ट दिया थोड़ा, वी नीड टू विश टू गेट मोनेटाइज्ड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड बिल्ड एन ऑडियंस ऑफ 5K प्लस, ठीक है। 5,000 से ज्यादा की ऑडियंस हमें बिल्ड करनी है। इसके बाद लास्ट लाइन जो होती है पैरामीटर्स की या फॉर्मेट की, तो वो हम इसको और थोड़ा बता देते हैं। वर्क ऑन ब्रेविटी, ठीक है। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? कम शब्दों में अपनी बात कहना, ठीक है। जितना हम कम शब्दों में कह सकते, तो वर्क ऑन ब्रेविटी का मतलब हो गया मुझे लिमिटेड शब्दों में अपनी बात का रिस्पॉन्स देना, ठीक है। वर्क ऑन ब्रेविटी, कॉमा, दी वीडियोज, दी कंटेंट आई वांट टू क्रिएट इज वीडियो फॉर्मेट, ठीक है।
तो ये भी एक पैरामीटर हमने सेट किया कि वीडियो फॉर्मेट को ही ध्यान में रखते हुए हमें बताए, ठीक है। और फाइनली जो चीज हमारी थी वो थी आई एम इंटरेस्टेड इन पोएट्री। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट हम कॉपी करके आपके ग्रुप में भी अभी पैरेलली डाल देते हैं, हैरी इसको कॉपी करके डाल देना, ठीक है। और एक बार ये दे दो चैट जीपीटी को। अब ये नॉर्मल प्रॉम्प्ट बेस्ड रिस्पॉन्स है जो देगा अभी चैट जीपीटी, ठीक है। So let's see what it has to see, you know. Now this will help us identify our niche थोड़ा और pinpointed तरीके से, ठीक है। अगेन उसने कुछ कुछ हमें सजेशंस दिए। ऑप्शन ए क्या था, थोड़ा ऊपर करना, रिलेटेबल पोएट्री, ठीक है, उसके बारे में कुछ कुछ बताया। फिर बॉलीवुड पोएट्री ऑप्शन 2 है, और नीचे करना स्टोरी टेलिंग पोएट्री, ये भी बढ़िया हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन 4 हिस्टोरिकल पोएट्री, ऑप्शन 5 मोटिवेशनल पोएट्री। तो कुछ इस तरह से इसने हमें वो दिया। अब सपोज हमने 5 चीजें डिस्कस करी थी, राइट, इंटरेस्ट, सो हमने इसको बता दिया जिससे इसने कुछ कुछ रिस्पॉन्स दिए। लेट अस नाउ रिफाइन दिस वेरी थ्रेड। अब ये थ्रेड जो रहेगी इसमें ये सारे आंसर ही इस तरह से देगा जैसे हमने इसको पहला प्रॉम्प्ट दिया था, ठीक है। लेट अस पुट इन अ सेकंड प्रॉम्प्ट, ठीक है। सपोज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट ऑल इट हैज टू से, ठीक है। अभी तक मैं कन्विंस नहीं हुआ कि मेरा एक नीश बना है। तो सपोज हमें 5 चीजें थी, लेट अस पुट इन दोस 5 पैरामीटर्स है। लेट अस टेल इट टू देन हमारे 5 वो इनपुट करना है एक बार हैरी, जो हमने वो करे थे, जो इंटरेस्ट, नॉलेज एंड हमने मीट के चैट बॉक्स में भेजा था ना, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड ऑडियंस डिमांड, ठीक है। ये 5 हमने कॉपी कर लिए। अब जस्ट गिव इट अ प्रॉम्प्ट दैट these are the 5 criteria I am focusing on for the selection of my niche, ठीक है। अब इसमें एक एक चीज को हम थोड़ा खुद से पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, कंसिडरिंग फॉर द नीश, ठीक है, दैट आई एम कंसिडरिंग फॉर द नीश। अब एक एक चीज को पढ़ते हैं। अब चैट जीपीटी को हो सकता है सब पता ना हो हमारे बारे में, तो हमें बताना है इसको। अब वो कैसे करेंगे, हम जाएंगे इंटरेस्ट के आगे हम लगाएंगे कॉलन और उसके आगे लिखेंगे इंटरेस्ट है हमारा पोएट्री, ठीक है। फिर नॉलेज के आगे हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें अब कोई रेलेवेंट इंटरेस्ट, तो क्या हमें उसके ऊपर कुछ नॉलेज है। तो सपोज अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो आई लाइक रीडिंग पोएट्री। मैंने कई ऑथर्स को पढ़ा है। एक जो फ्रेश जो मेरे टेबल पे है, जो मेरे को याद आ रहा है, तो इट इज रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। हिंदी पोएट है और काफी फेमस, काफी अच्छी पोएट्री रहती है। तो अब नॉलेज में सपोज आई पुट इन दैट आई हैव रेड रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ऑडियंस डिमांड, ये सब चीजें तो एडिशनल क्राइटेरिया, मुझे अपनी तरफ से कुछ बताने की जरूरत नहीं है चैट जीपीटी, ठीक है। अब लेट अस इनपुट दिस प्रॉम्प्ट एंड सी वेदर इट इज एबल टू गिव समथिंग satisfactory or not, okay। Again, it could be anything for you, it could be sports, it could be cricket, it could be personalities in cricket, right। अब देखो कुछ कुछ इसने मेरे को एक रिस्पॉन्स दिए जो वे बेटर है पिछले रिस्पॉन्स से, राइट। ये मेरे को बता रहे कि what can I do which is better than 95% of the creators, right। नीचे नीचे चलते हैं, तो अभी क्या नीश दे रहे हैं मेरे को। अच्छा, it will also give you some mistakes to avoid वगैरह वगैरह which are also useful for you। I tell you unforgettable stories about stories through Hindi poetry। See how it has refined your niche selection कितना ज़्यादा। फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी इसने दिए। एंड फाइनली, और नीचे करना, रीड अक्रॉस दीज कैटेगरीज। आप देख रहे हो इसने केवल लिमिट नहीं करा रामधारी सिंह दिनकर से, लेकिन मेरे इंटरेस्ट और नॉलेज को देखते हुए इट हैज सजेस्टेड मी टू मूव लाइक दिस। आई कुड गो ऑन क्लासिक हिंदी पोएट्री, दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। फिर मैं उर्दू में जा सकता हूँ, मिर्जा गालिब, जॉन एलिया, ठीक है। फिर मॉडर्न हिंदी में कुमार विश्वास, और इसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी आई कैन, शॉर्ट स्टोरीज, सिनेमा, बायोग्राफीज, माइथोलॉजी, इन सब के ऊपर मैं कॉम्बिनेशन बना के अपनी नीश कुछ इस तरह से रख सकता हूँ, ठीक है। नीश डज नॉट
really need to be only one thing. It can be a combination of multiple things as well. Suppose I like talking about this, and I like talking about space, aliens. Okay, so I can combine two niches and create a new niche of my own, in which I have multidisciplinary things going on. ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है जो आप कर सकते हो. ठीक है, आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा हाउ टू मूव अबाउट आइडेंटिफाइंग योर नीश. ठीक है, चलो, तो आज आपको सबसे पहला टास्क तो देखो ये करना है कि आपको समझना है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है. तो आपको चैट जीपीटी के साथ ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट देके 10-15 मिनट लगेंगे. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर नीश. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द मार्केट रिसर्च. ठीक है, चलो, perfect. So now let us move on to the next and the final topic of today's lecture, which is how to conduct deep research for your market research for your niche. ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन भी एक तरह का बिजनेस है. ठीक है, आपको अगर और भी कुछ बिजनेस करना है या इन जनरल और भी कोई रिसर्च करनी है किसी चीज में, तो उसके पीछे मार्केट रिसर्च कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर और नॉट देयर इज अ demand in the audience, whether or not it will work in the real market or not. For that, there is a feature in chat gpt that we will use. एक प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा प्रॉम्प्ट जहाँ हम डालते हैं उसके साथ, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे जो है टूल्स हमें मिल जाते हैं. तो इसमें एक टूल है डीप रिसर्च, तो हम उसे क्लिक करेंगे. ठीक है, अब जो भी हम प्रॉम्प्ट देंगे उसका जवाब चैट जीपीटी डीप रिसर्च के थ्रू देगा. ठीक है, वो केवल अपने ट्रेंड फॉर्मेट पे आंसर करने की बजाय एक डीप रिसर्च कंडक्ट करेगा जो 4-5 मिनट तक चल सकती है, जिसमें वो गैदर करेगा सोर्सेस को और उसकी एक रिपोर्ट बना के हमें देगा. तो हम डीप रिसर्च लगा चुके हैं. अब लेट अस गिव इट अ प्रॉम्प्ट टू डू मार्केट रिसर्च फॉर आवर सिलेक्टेड नीश. अब नीश हमने इसको पिछले 2 प्रॉम्प्ट्स में क्लियर करी है. लेट अस पुट अ प्रॉम्प्ट टू कंडक्ट डीप रिसर्च. ठीक है, अब इसमें अगेन पर्सनालिटी देने की दोबारा जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी इस थ्रेड में दे ही चुके हैं, बट अगर आप फ्रेश कर रहे हो तो पर्सनालिटी भी देना. ठीक है, चलो हम दे ही देते हैं, दोबारा एक डीप रिसर्च का प्रॉम्प्ट दे रहे हैं. तो लेट अस टेल हिम यू आर अ मास्टर ऑफ द सेड नीश. ठीक है, सेड नीश का मतलब जो पिछले प्रॉम्प्ट में उसने आंसर दिया. ठीक है, यू आर पर्टिकुलरली known for your precise and accurate market research ठीक है, अब उसको थोड़ी पर्सनालिटी दे दी हमने. अब हमारा टास्क क्या है, नेक्स्ट लाइन में लेट अस पुट इन कंडक्ट अ थोरो market research focused on this niche and give me a report which justifies why would this content work. ठीक है, अब इसको भी और बेटर कैसे लिखते हो, why this content would or would not work. ठीक है, तो उसमें वो केवल एक साइड की आर्ग्यूमेंट्स देने की बजाय दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स देगा, दैट यू कैन कंपेयर बेटर एंड मेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ठीक है, अब ये हमने टास्क दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, कॉन्टेक्स्ट दे दो इसको कि द ऑडियंस फॉर दिस कंटेंट वुड बी इंस्टाग्राम रील्स. ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स की ऑडियंस होगी जिन तक मैं कंटेंट बना के पहुंचा रहा हूँ. ऑल्सो आइडेंटिफाई द फ्यूचर स्कोप ऑफ दिस ऑडियंस, कि फ्यूचर में क्या ये ऑडियंस बढ़ रही है, क्या ये ऑडियंस घट रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो सब ये इसने प्रॉम्प्ट से मेरे को बताया. एंड फाइनली पैरामीटर सेट करने में अब पैरामीटर मेरे को किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए. क्रिएट अ 5 to 10 page report
ठीक है। अब और कुछ अगर स्पेसिफिक टेक्निकलिटीज डालनी है, ठीक है, जैसे फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन ऐसा लिख दो अगर इफ यू वांट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फॉन्ट, ठीक है। जस्टिफाई अलाइनमेंट बिकॉज इट्स मोर रीडेबल इफ यू वांट। लिस्ट ऑल योर सोर्सेस, ठीक है। अब हाँ, एक चीज आप और कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि यूज जेन्युइन एंड रिलायबल सोर्सेस, ठीक है, ताकि कोई होक्स या कॉन्स्पिरेसी ना बन जाए एट द एंड ऑफ इट, राइट। यू नीड समथिंग टू रिलाई अपॉन। अब दिस इज अ गुड प्रॉम्प्ट फॉर अ डीप रिसर्च, ठीक है। नाउ लेट अस सेंड दिस प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो डीप रिसर्च हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो ये अपने आप एक डीप रिसर्च का हमें रिस्पॉन्स देगा। उस रिस्पॉन्स में क्या होगा, वो बताएगा कि वो क्या समझा हमारे प्रॉम्प्ट से, किस तरह से वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, और क्या आप चाहते हो टू प्रोसीड विद दैट। अब आप चाहो तो उसी को स्टार्ट रिसर्च कर सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड हो, नहीं तो आप वेट कर सकते हो और उसमें एडिट कर सकते हो कुछ और चाह रहे हैं, ठीक है। लेट अस रीड। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कलेक्ट इंस्टाग्राम रीड डेटा, ठीक है, स्टोरी टेलिंग क्रिएटर्स, पोएट्री क्रिएटर्स के ऊपर, एनालाइज द ऑडियंस डेमोग्राफिक एंगेजमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट, review the monetization options that I have for Instagram creators. Again, they differ. For YouTube Shorts, there is a different process of monetization, but for Instagram, there is a different kind of monetization. ठीक है, जो ऑफिशियल Instagram का monetization नहीं होता जैसे YouTube पे होता है कि YouTube itself gives you money. Instagram पे brands reach out to you, तो brand collaborations वगैरह, उससे आपको you start earning opportunity. फिर सर्वे कंपेटिटर चैनल्स, ठीक है, ऑलरेडी कुछ होंगे नीश में जो चैनल्स हैं। एंड फाइनली सिंथेसाइज दिस ऑल फाइंडिंग इनटू अ 5-10 पेज रिपोर्ट। तो हम इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक ऑटोमेटिक टाइमर आपने देखा होगा चल रहा है, अगर आप खुद से नहीं करते तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस विल टेक अबाउट 4 to 5 minutes टू डू इट्स रिसर्च। उसके बाद वो रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा आप हम देख ही लेंगे यहाँ पे अभी। बट अब आपको आइडिया लग गया कि आपको डीप रिसर्च टूल का इस्तेमाल कैसे करना है ChatGPT पे, right? Is this clear to everyone? If you have any kind of doubt, let's take your doubts now. Anyone? Sure. Sir, like I had a doubt not regarding deep research part, but I have heard a lot of advices when people feed ChatGPT with like you are a critic and you always have to counter my points and you don't have to agree all the time. So will this strategy work in general use case, and will this strategy work for the project specified in content creation? So, just to clarify, you want to know if you specifically tell ChatGPT कि critique me, so be harsh in your criticism. So you Yes. want to know whether that would work in other things or not. Yes, sir, yes. All right. So yeah, this is something I personally have done. So I've experienced this firsthand. So what happens is ChatGPT, unlike other bots out there, जैसे Grok है, ChatGPT है, Gemini है, they have certain characteristics जो इनके साथ लिंक कर सकते हैं हम। जैसे ChatGPT in general is said to be a little people pleaser, ठीक है। आप जैसा भी प्रॉम्प्ट दोगे, जैसा भी कुछ उसे बताओगे, वो कोशिश करेगा कि आपको खुश करे, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट का ये तरीका है, राइट, कि वो आपको ऐसा रिस्पॉन्स दे जो आपको बुरा ना लगे, ठीक है। तो वो आपको, चाहे आपका रिस्पॉन्स आप डिजर्व बुरा ही रिस्पॉन्स कर रहे हो उस चीज़ का, सपोज आपने बहुत ही गंदा एडिट बनाया, आप उसको पूछ रहे हो कि ये अच्छा है बुरा है, और वो आपको कहेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है वो, तो उस वे में वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी आदत है। लेकिन आपके लिए शायद ये लॉन्ग टर्म में अच्छा ना हो, अगर आपको ऑनेस्टली एक फीडबैक चाहिए था वहाँ पे और वो आपको केवल तारीफ कर रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ChatGPT में भी कुछ सेटिंग्स होती है। आप अपनी प्रोफाइल पे जाते हो, आप उसको वहीं बता देते हो कि यार आई डोंट नीड यू टू ऑलवेज प्रेज मी, आई वांट ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म फॉर माय वर्क एंड आई कैन टेक ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो आप पहले ही वो इनपुट कर सकते हो प्रोफाइल में जाके, दैट हेल्प्स यू। अगर आप वहाँ नहीं डालते, केवल एक थ्रेड के लिए आप चाहते हो करना, तो आप उस थ्रेड में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो गिव मी ऑनेस्ट फीडबैक ऑन व्हाटएवर यू, ठीक है। आप अगर नहीं चाहते हो कि उसकी लैंग्वेज ऐसी हो, तो आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो, जैसे हमने कहा ना कि गिव अस बोथ साइड्स, तो अब वो उस साइड को भी उतना ही आर्ग्यू करेगा, राइट। तो आप ये बैलेंस्ड अप्रोच रख सकते हो। अगेन, अगर आपका ChatGPT से यूज केस ही ऐसा है, सपोज आप उसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है, आप अपना शेड्यूल बताते हो, आप उससे पूछते हो कि यार मैं और अपने शेड्यूल को कैसे एफिशिएंट बनाऊं, ये करूं,
तो शायद आपको उतनी ज़रूरत ना पड़े उसके हार्श फीडबैक की, राइट। लेकिन आपको अगर उसकी ज़रूरत ही इस चीज़ के लिए, सपोज व्हाट आई डू इज व्हेन आई क्रिएट एनी रिपोर्ट्स एंड आई नीड टू बिफोर सबमिटिंग इट, आई वांट एन ऑनेस्ट ओपिनियन कि इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आई पुट इन मेरे चैट जीपीटी में ऐसे कि यार गिव मी एन ऑनेस्ट स्ट्रिक्ट फीडबैक ऑन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट। तो फिर वो मुझे ऑनेस्ट जो है रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो एक जनरल सजेशन मेरी रहेगी कि अगर आपका यूज केस ऐसा है कि यू रियली वांट एन ऑनेस्ट ओपिनियन, तो चैट जीपीटी को बताओ कि यू वांट एन ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंड ऐसा है एज अ चैटबॉट कि वो आपकी तारीफ करे, ठीक है। इसी के इसमें ग्रॉक एक ऐसा फीचर है जो उसका एक्स एआई का आई गेस वो है एआई चैटबॉट, तो वो काफ़ी हद तक इसमें ठीक है, वो बहुत ही एकदम मुंह पे आपको रिस्पॉन्स देगा। तो अगर आप ऑनेस्ट फीडबैक चाहते हो और चैट जीपीटी नहीं दे पा रहे तो आप ग्रॉक पे जा सकते हो। गॉट इट सर, Perfect. थैंक यू सर। चलो हैरी वो हो गया है क्या, कितना बचा है अभी? ठीक है, चलो उसको हम कंप्लीट करते हैं। मीनवाइल आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर योर गूगल क्लासरूम वाला स्क्रीन। करने में टास्क में दिक्कत तो नहीं आ रही है? सबसे हो जा रही है? एक बार थम्स अप दे दो अगर हो जा रही है आपसे। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को आ रही थी, अभी तक आ रही थी, तो हमने सोचा आज आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हैरी एक बार प्लीज वो गूगल क्लासरूम खोल लो। उस गूगल क्लासरूम में, ठीक है, हमने एक स्टूडेंट प्रोफाइल बनाई है आपको दिखाने के लिए इस तरह से आपके एंड पे चीज़ें दिखती हैं और आप कैसे अपलोड कर सकते हो। तो हैरी विल जस्ट शेयर स्क्रीन, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको खुला हुआ दिखेगा आपके गूगल क्लासरूम में GYCF, राइट। तो इसमें पहले तो हम आएंगे क्लास वर्क के ऊपर। क्लास वर्क के ऊपर आएंगे तो आपको अपना एक टास्क दिख जाएंगे, राइट। डे के हिसाब से हमने बांटे हुए थे, तो जैसे किसी भी हम टास्क को अगर एक बार क्लिक करेंगे तो उसकी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगे, कि जैसे आज वाले पे आते हैं कैनवा पीपीटी इंस्ट्रक्शंस खुल गए और इसमें हम व्यू इंस्ट्रक्शंस के ऑप्शन पे गए। ये आज ड्यू है 11:59 PM तक, तो आप देख रहे हो वो डेडलाइन भी साथ में है। अब इसको आप देखोगे कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस उसकी खुल जाएंगी। ऊपर नेम ऑफ द टास्क लिखा है, उसकी ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शन सब उसी में है, ठीक है। उसके नीचे ही हमने फॉर्मेट ऑफ सबमिशन, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है सबमिशन में, वो सब भी इसमें डाला हुआ है, तो आप रेफर कर सकते हो। अब आपने इनको पढ़ के अपना काम कर लिया, ठीक है। वंस यू हैव मेड योर फाइल, ठीक है, सपोज आपने इसमें आज की सबमिशन किस में होगी, पीपीटी फॉर्म में होगी, ठीक है। पहले की सबमिशन थी शायद वीडियो फॉर्म में थी, कुछ पोस्टर्स थे जो PNG या PDF हमने लिए थे, ठीक है। जब आपकी फाइल बन गई है, आपने उसे सेव कर लिया, सपोज ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस रहेगा। आप ऊपर जाएंगे, योर वर्क में होगा ऐड और क्रिएट, ठीक है। तो आप फाइल में जाओगे और इस फाइल में जाके आपका कंप्यूटर में वो आपको जाना है और उस फाइल को चूज करना है, ठीक है। अभी वो फाइल पे आप जाओगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो आपको पता ही है, ब्राउज पे जाओगे, अपलोड कर दोगे जो भी आपकी फाइल थी, ठीक है। तो सपोज ये फोटो थी, तो आपने ब्राउज करके वो फोटो को डाल दी। दिस इज जस्ट यू अपलोडिंग योर फोटो टू और कंटेंट टू द इंटरफेस। अभी सिर्फ आपने अपने कंप्यूटर में उसे अपलोड करा है, आपने अभी उसे सबमिट नहीं करा है। सबमिट करने के लिए इसके साथ ऑप्शन है टर्न इन का। टर्न इन पे जब क्लिक करोगे तब फाइनली, टर्न इन पे जब जाओगे, यस, तब फाइनली जो है आपका होमवर्क सेंड होगा, हमारे साइड पे दिखेगा, ठीक है। जब उस पर टर्न इन आ जाए लिखा हुआ, तब समझ लो आपका काम हो गया, सबमिट हो गया होमवर्क। अगर टर्न इन लिखा नहीं आया तो मतलब कुछ अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो इसको देख लेना। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो कई लोगों को दिक्कत आ रही थी, ठीक है। चलो अब आज का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। हैरी थोड़ा सा जूम कर सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की ओर? परफेक्ट, ठीक है। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिए। सबमिशन की रिक्वायरमेंट्स आपको दिखा देते हैं। प्रिपेयर प्रेजेंटेशन कवरिंग द फॉलोइंग। तो एक क्विक हैक हम आपको अभी दिखा देंगे स्क्रीन शेयर करके, कैनवा पे कैसे फटाफट से आप एक PPT का टेम्पलेट बना सकते हो और उस टेम्पलेट में आपको जो है स्लाइड्स डालनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट ऑल स्लाइड्स योर प्रेजेंटेशन मस्ट हैव, वो आपकी सबमिशन रिक्वायरमेंट्स के नीचे जो बोल्ड में हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्लाइड होनी चाहिए, ठीक है, पहली स्लाइड जिसमें आपका नाम हो, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हो,
ठीक है, क्या करते हो आप, कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में हो। फिर उसके बाद सेकंड स्लाइड है सिलेक्टेड नीश, कि आपने क्या नीश सिलेक्ट करा है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करो, उसका नाम लिखो। अगर वो मल्टीपल नीश है तो मल्टीपल 2-4 नीश के नाम लिखो जो आपके हैं, ठीक है। आप उन्हीं के साथ थोड़ा कंटेंट ये डालो जिससे पता लगे व्हाट नीश यू हैव चूजन एंड व्हाई डज दैट नीश इंटरेस्ट यू, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। सपोज आपको दिक्कत हो रही है नीश ढूंढने में, तो इनमें से कुछ रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं टारगेट ऑडियंस। अगेन एक स्लाइड आपको बनानी है अपनी टारगेट ऑडियंस को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। कौन है आपकी टारगेट ऑडियंस? इज इट स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम सो एंड सो ग्रेड्स? इज इट कॉलेज स्टूडेंट्स फ्रॉम सो एंड सो ग्रेड्स? इज इट समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर? इज इट पोएट्री फैंस? ठीक है, तो वो आपको टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करनी है अपनी। एंड व्हाई वुड दे वॉच योर कंटेंट? अगेन एक फ्रेश स्लाइड बना सकते हो इसके लिए, आपको एक्सप्लेन करने व्हाई would your target audience watch your content, what is there for them in your content, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड बनानी कंटेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट विल यू क्रिएट? सपोज आपको ब्लॉग लिखने हैं सिर्फ, ठीक है, तो वो आपका काइंड ऑफ कंटेंट हो सकता है। सपोज आपको केवल ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने हैं, तो वो आपका टाइप ऑफ कंटेंट हो सकता है। शॉर्ट फॉर्म है या लॉन्ग फॉर्म है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, ये सब टेक्निकलिटीज आप कंटेंट स्ट्रैटेजी में बताओगे। और उसमें फिर फाइनली ये बताओगे कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, एजुकेशनल है, इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग या इंस्पिरेशनल। फिर कंटेंट आइडियाज। अगेन उसके बाद अब आपकी नीश को आपने जस्टिफाई किया अभी तक, तो उसके बाद आप बताओगे आपके आइडियाज क्या हैं। अब आपने नीश डिसाइड कर लिया, अब आप क्या बनाओगे, अगली 10 रीलें क्या बनानी है आपको, ठीक है, अगली अगली 10 आइडियाज क्या हैं आपके वीडियोस के, तो आप उनको लिस्ट करोगे, ठीक है, टेबल में या जैसे भी ब्यूटीफुली आप लिस्ट करना चाहो आप उसे लिस्ट कर सकते हो कंटेंट आइडियाज वाली स्लाइड में। उसके बाद क्रिएटर इंस्पिरेशन, ठीक है, एक स्लाइड बनाएंगे जिसमें 2 कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, जो हमें इंस्पायर करते हैं, हु इंस्पायर यू, एंड एक्सप्लेन व्हाट यू एडमायर अबाउट देम, ठीक है। जरूरी नहीं सब चीज बड़े बड़े लिखो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हेडिंग्स दे सकते हो। एंड फाइनली लॉन्ग टर्म विजन की एक स्लाइड होनी चाहिए कि आप इससे लॉन्ग टर्म में क्या विजन रखते हो, ठीक है। व्हाट इम्पैक्ट डू यू होप ऑन क्रिएटिंग, राइट, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 1-2 years, तो ये एक स्लाइड होनी चाहिए। तो इन सब हेडिंग्स की एक एक स्लाइड होनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स अगेन हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे आज के क्या होंगे। सबमिशन फॉर्मेट पे आते हैं। सबमिशन फॉर्मेट आज का रहेगा कि हमें जो है 6 से 12 स्लाइड होनी चाहिए, ठीक है, 12 से ज़्यादा मत रखना, 6 से कम मत रखना। पीपीटी फॉर्मेट में होनी चाहिए। वो कैसे होगा, क्या होगा, आपको अभी हम शॉर्टली दिखा देंगे। और उसको हम अपलोड करेंगे इसी नाम के अंदर, अपने नाम _D9 GYCF, क्योंकि यार D9 है GYCF का, और डॉट पीपीटी के फॉर्म में वो स्टोर करनी है, ठीक है। कुछ एडिशनल गाइडलाइंस है आपके लिए, ठीक है। चलो ये टास्क अब समझ गए हैं सब? किसी को टास्क में डाउट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार थम्स अप भेज दो इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। परफेक्ट परफेक्ट, वो हो गया हैरी, डीप रिसर्च कंडक्ट हो गया। चलो लेट अस शेयर द कैनवा स्क्रीन नाउ, ठीक है। ठीक है, व्हाट वी विल डू इज कैनवा का खुद का इनबिल्ट एआई होता है जिसमें हम प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो अपने आप हमें प्री बिल्ट टेम्पलेट्स दिखा के एक पीपीटी बिल्ड करने में हेल्प कर देगा। आज के टास्क बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। करते टाइम आपको पता लगेगा कि यार कुछ ही नहीं है, ठीक है। उसका मेजर डिफिकल्ट वाला पार्ट यही था जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सिलेक्ट करें नीच को, कैसे डीप रिसर्च कंडक्ट करें, कैसे उस रिसर्च को पढ़ना है, और फिर फाइनली उसको पीपीटी फॉर्म में बनाना। पीपीटी इज वेरी सिंपल, ठीक है। आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें कोई ज़रूरत नहीं हम एमएस ऑफिस में जाके पीपीटी में बहुत ही टेम्पलेट्स बिल्कुल जीरो से बनाए। हमारे पास ऑलरेडी इतना हेड स्टार्ट हमें मिल गया। हम जाएंगे कैनवा एआई जो फीचर है नॉर्मल, उसमें जाना, क्रिएट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकेंड, होम में जाना एक बार। ब्लेस यू। तो हाँ, यहाँ पे हम जो है चूज करेंगे हमारा पीपीटी को, ठीक है। प्रेजेंटेशन हमें ऊपर ऊपर ही दिख रहा है, प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम चाहें तो यहाँ पे टेम्पलेट्स ले सकते हैं। अरे यार वो उस पे होम पे जाना, कैनवा एआई वाले फीचर पे।
ठीक है, व्हाट विल वी डिजाइन टुडे, बस यही खोलना है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो चैट जीपीटी जैसा वो आ गया प्रॉम्प्ट डालने का, है ना। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक काम करो और सिंपल करते हैं, आपका जो सबमिशन रिक्वायरमेंट्स था ना उसको कॉपी कर लो, ठीक है। प्रिपेयर पीपीटी यहाँ से शुरू हो रहा था ना वो, वहाँ से लेके लर्निंग आउटकम्स के एंड तक, ठीक है, या वो नहीं भी लेना है तो लॉन्ग टर्म विजन के एंड तक, ठीक है। उतने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो, उतने प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी हम उसी को पेस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप वो काम भी थोड़ा और स्मूथ कर लो तो आप उसको लेना, सबमिशन रिक्वायरमेंट्स को, उसको चैट जीपीटी में डालना, चैट जीपीटी को ये बताना कि यार आई वांट अ प्रॉम्प्ट टू इनपुट इन कैनवा, these are my submission requirements and the niche you have already helped me identify, और फिर एक एक क्वेश्चन को आंसर करते जाना। जैसे इसमें क्वेश्चंस क्या हैं कि ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको कुछ बताना पड़ेगा अपने बारे में, तो उसमें टाइप कर देना, ठीक है, दैट माय नेम इज सो एंड सो, माय बैकग्राउंड इज दिस इज। सिलेक्टेड नीश के बारे में बताना कि ये है जो भी आपका सिलेक्टेड नीश है, ठीक है। फिर नीचे जाना थोड़ा, ठीक है, कि अब तो स्लाइड्स में कंटेंट तो पर्सनलाइज्ड ही डालना है ना, उसमें अभी हम आपको दिखाने के लिए इलस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, इसमें इनपुट आपको ही करने हैं आइडियाज अपने, ठीक है। फिर कंटेंट आइडियाज, क्रिएटर आपको कौन से दो पसंद है ना, चैट जीपीटी थोड़ी बताएगा आपको कौन से दो क्रिएटर पसंद है, वो तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से इस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से इंजीनियर करके इसको सेंड कर दो आगे, ठीक है। उसमें नीचे डिज़ाइन, इमेज, डॉक के जो ऑप्शन है उसमें जाना, डिज़ाइन में नीचे जो वो है, ठीक है। इसमें डिज़ाइन में हमें क्या चूज़ करना है, प्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। ऑडियंस अगेन कुछ हमें सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिल ही गए, तो लेट्स पुट इट, वो कर लो, एजुकेशन कर लो, एजुकेशनल स्टाइल कर लेते हैं कुछ, ठीक है, अगेन योर चॉइस, कोई भी कर लो हैरी। और लेंथ में अगेन हमें 6 से 12 करना है, तो 5 से 15 वाला ठीक रह रहा है, ठीक है। अब लेट्स गिव इट द प्रॉम्प्ट। अभी अपने आप हमारे प्रॉम्प्ट को स्टडी करके उस हिसाब से हमें स्लाइड्स बना के दे देगा और कुछ टेम्पलेट्स भी दे देगा, ठीक है, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। उनके ऊपर हम बिल्ड करते हुए वी कैन सिलेक्ट एंड क्रिएट व्हाट वी वांट टू क्रिएट, ओके। चलो एक बार यही नया खुल गया है क्या, जनरेट प्रेजेंटेशन, ठीक है, वो आ गया ऑप्शन, उसको हम क्लिक करेंगे तो अपने आप जो है वो एक प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट क्रिएट कर देगा हमारे लिए, जिसको बाय द वे हम एडिट कर सकते हैं जैसे भी हम चाहें, है ना। उसमें फिर हम सब चीज़ें लगा सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल, जितना भी अभी तक हमने सीखा है कैनवा यूज़ करना, वो सब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। वी वुड इनकरेज कि आप वो सब चीज़ों को भी क्रॉस रेफरेंस करके यहाँ पे इम्प्लाई करें। अगर आप 2 क्रिएटर्स के बारे में बता रहे हैं तो उनकी फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव करके लगाइए, एनहांस करके लगाइए, तो वो दिखाएगा कि आप मैच्योर हो गए हैं कंटेंट क्रिएशन में, राइट। चलो मीनवाइल जैसे ये हो रहा है, तो हैरी हमारा वो हो गया है क्या मीनवाइल, जो डीप रिसर्च था। हाँ हो गया है। हाँ, तो लेट अस शो दैट एज वेल पैरेलली, ठीक है। हैव यू शेयर्ड द एंटायर स्क्रीन या विंडो करी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वो एग्जीक्यूटिव समरी आ गई है, ठीक है। ये आपके पढ़ने के लिए कुछ ऐसे भी आ जाती है, वैसे ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आप डाउनलोड का आइकन देख पा रहे होगे, तो इसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ में, वर्ड में, ठीक है। तो आप इसको सपोज पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। उस पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके आप पीडीएफ को फिर थोड़ा स्टडी करो, क्या पॉइंट्स हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको आपके साथ क्लिक कर रहे हैं, जो आपकी आर्ग्यूमेंट की मेरा कंटेंट, व्हाई वुड योर कंटेंट वर्क, ठीक है। एसेंशियली आपकी पीपीटी का एक ही सवाल जो हम पीपीटी से आपसे पूछ रहे हैं वो है व्हाई वुड योर कंटेंट वर्क, तो मार्केट रिसर्च से यू ट्राई टू जस्टिफाई इट, ठीक है। उसी के लिए आज का टास्क है, ठीक है। अच्छा हाँ, आज के टास्क की आधी चीज़ बताई है मैंने, ये करना तो है सब में, बट कल की वीडियो में, कल की क्लास में वी वुड वांट एवरीवन टू कम इन एंड एक्सप्लेन देयर पीपीटी। मतलब आपकी पीपीटी हम प्रेजेंट करेंगे, आपको 5 या 10 मिनट का टाइम पर फेलो हम देंगे,
आपको एक्सप्लेन करना है टू ऑल दी people present here, plus we'll have some extra audience for tomorrow, why your PPT is the way it is. ठीक है, why your content would work. ठीक है, अगेन इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो. ठीक है, अगेन जो आप अपने लिए रिसर्च करो आपको अपने वाला पढ़ना है, और इसमें से कंटेंट को उठा के आपको पीपीटी में भी यूज करना है. तो आज का डुअल टास्क है एक्चुअली, आपको केवल पीपीटी नहीं बनानी है, आपको प्रेजेंट भी करनी है कल की मीटिंग. ठीक है, कल की मीटिंग का टाइम हम 2 मीटिंग्स कर रहे होंगे कल के दिन में. 2 स्लॉट होंगे, एक सुबह का स्लॉट होगा, एक शाम का स्लॉट होगा. आपको अपना चूज करना पड़ेगा. आज हम टेक्स्ट पोल डाल देंगे ग्रुप में, और कल आके आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, इसीलिए आज का टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपको प्रेजेंट करना है. ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, कमिंग बैक टू आवर पीपीटी नाउ. अब एक ड्राफ्ट टेम्पलेट क्रिएट हो गया. इस टेम्पलेट को आप एडिट कर सकते हो चूज करके, जैसे हरजोत सिंह. ठीक है, फिर उसमें जो फोटोज भी हैं, दीज आर फ्रेम्स एक्चुअली. पहली स्लाइड में एक बार आएंगे, देखो आप इसको राइट लेफ्ट में कर सकते हो. ये फ्रेम्स हैं एक्चुअली, इनके ऊपर आप और फोटोज अपनी लगा सकते हो लाकर, है ना, अपने कंटेंट की या खुद की फोटोज. फिर आगे बढ़ेंगे. अगेन दिस इज अ ड्राफ्ट टेम्पलेट, आप चाहो तो इन्हें एडिट कर सकते हो. ठीक है, आप चाहो तो और टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो. और टेम्पलेट कैसे चूज करेंगे एक बार वो दिखाना. हमारा चैट बॉक्स अभी बचा है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको और ज़्यादा जो है आगे बढ़ा सकते हैं. नहीं तो हम ऊपर जाएंगे टेम्पलेट्स पर. तो यहाँ से भी हम टेम्पलेट चूज करके और टेम्पलेट्स में भी बना सकते हैं. ठीक है, चलो इस पे आगे आगे स्लाइड्स देख लेते हैं. सिलेक्टेड नीश हमारा क्या है. ठीक है, उसको हम करते हुए और सबको एडिट करते हुए आगे बढ़ेंगे. एक एक करके रन थ्रू कर दो हैरी स्लाइड से. टारगेट ऑडियंस, कंटेंट स्ट्रैटेजी. ये क्यों ऐसा बेसिक क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट अभी बेसिक था. इसको पर्सनलाइज प्रॉम्प्ट देंगे जब हम आंसर्स के साथ देंगे प्रॉम्प्ट, तो वो अपने आप आपकी पीपीटी रेडी कर देगा. ठीक है, आपको फिर भी इफ यू हैव सम डाउट्स एंड यू फेस सम इश्यूज एंड डिफिकल्टीज व्हाइल डूइंग द टास्क, फील फ्री टू रीच आउट टू अस. ठीक है, कंटेंट आइडियाज अगेन, चलो इसको रन थ्रू कर देते हैं. क्रिएटर इंस्पिरेशन, so on and so forth, long term vision, and finally summary and next steps and all. Okay, chalo, this is how you finalize your PPT once you are done with the PPT. जब आपको लगे कि आपने कर ली है. ठीक है, हाँ, एक थैंक यू स्लाइड भी डाल देना. इट्स मोर प्रोफेशनल टू हैव अ थैंक यू स्लाइड एज वेल. फिर उसके बाद हम इसको करते हैं, शेयर में जाते हैं ऊपर सेव करने के लिए. शेयर में जाएंगे. ठीक है, डाउनलोड में जाएंगे. अब डाउनलोड में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें इसको पीडीएफ में डाउनलोड नहीं करना है, हमें पीपीटी में ही डाउनलोड करना है. तो उसको हम फॉर्मेट को चेंज करेंगे, फाइल टाइप को, और पीपीटी कर देंगे. पीपीटी एक्स वाला फॉर्मेट, जिस पे ऐसे वीडियो प्ले वाला ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है, वो सारी स्लाइड्स की पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी, और उसी डाउनलोडेड पीपीटी को हमें सबमिट करना है. क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आज का होमवर्क हमने समझा दिया, आज का हमने सारे टास्क समझा दिए हैं. आज थोड़ा चंकी लेक्चर था. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने थोड़ा कन्वर्सेशन भी रखी थी. आई होप द टास्क इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, हैरी कर दो स्क्रीन शेयर अभी बंद. ठीक है, एक बार थम्स अप भेज दो. परफेक्ट. वंस यू हैव सबमिटेड द टास्क, ठीक है, ग्रुप में डाल देना कि सबमिटेड या कंप्लीटेड टुडेस टास्क. टुमारो 2 स्लॉट होंगे, आपको कोई एक स्लॉट चूज करना है, और आपको अपनी 5 या 10 मिनट का टाइम हम आपको बता देंगे, आपको अलॉट होगा. आपको अपनी पीपीटी प्रेजेंट करते हुए एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, so all the best for that. Perfect. Do you have any other doubts? None. So we can conclude the lecture. Thank you for joining in.